Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well and you are completing all your lectures on time. So we are starting our new lectures. So please make sure you have completed all your previous lectures because पिछला नहीं पढ़ोगे then you will not be able to understand whatever we are teaching in this lecture. So please complete your lectures, assignments, homework on time और please अपना time utilize करो, अपना best efforts लगाओ and अच्छे से पढ़ाई करो. So let's start the lecture. So in the last lecture we had ended the lecture with radius of curvature and we had solved one problem जिसमें 3 sections थे, I mean 3 parts थे and we had solved those problems और हमने उसको analyze किया था. Now in this lecture we'll start the circular motion, उसका जो actual part है non-uniform and uniform circular motion. तो जब आप uniform circular motion की बात करते हो तो uniform, this word we have already heard when we were studying the kinematics. So uniform means हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्लियर? बट यहाँ पे जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल, तो डेफिनेटली वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट. ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, सो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, बट वी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड. We can have a constant speed of that particle. So if a particle is moving in a circle with constant speed, अगर उसकी speed 2 pi radian per second है या pi by 2 radian per second है, it is always pi by 2 radian per second. It means it is covering pi by 2 every second, pi by 2 radian every second, है ना, pi by 2 radian every second. So uniform circular motion मतलब whenever the particle has constant angular velocity or constant speed. Constant angular velocity, why I said constant angular velocity? Because वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन तो हमेशा कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब वो ऊपर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो लेट्स से आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर वो हमेशा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. सो इफ इट इज ऑलवेज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड, स्पीड मतलब हम लीनियर वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो टेंजेंशियल होता है हमेशा. ठीक है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बट स्पीड इज नॉट चेंजिंग. इफ इट इज कांस्टेंट देन सच सर्कुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी बट नो चेंज इन स्पीड. सो चेंज इन वेलोसिटी, which acceleration or which force is responsible for change in velocity, change in speed, I'm sorry, which acceleration or which force is responsible for change in speed? The tangential force. So if there is no change in speed there won't be any tangential force, है ना. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, in uniform circular motion we have an object which is moving in a circle with constant speed. वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड इज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज v. इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वेलोसिटी इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसका मतलब dv by dt is 0. There is no change in speed. There is no change in speed. But is there any change in velocity? क्या यहाँ पे dv divided by dt will be 0? dv divided by, अच्छा ये तो क्या है, नो चेंज इन स्पीड मतलब dv divided by dt, है ना. नो चेंज इन स्पीड मतलब dv divided by dt is 0. अब चेंज इन स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड के चेंज के लिए which force is responsible और which acceleration is responsible? It is tangential force या tangential acceleration. तो अगर स्पीड बढ़ नहीं रही है या कम नहीं हो रही है, if it is constant then tangential force and tangential acceleration are 0. तो जो भी हमारे पास फोर्स लग रहा होगा ऑन दैट पार्टिकल वो सिर्फ कौन सा होगा? इट विल बी ओनली सेंट्रीपेटल फोर्स. व्हेनेवर अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन देयर आर टू फोर्सेस. If we talk about, there is a net force acting on the particle. If we take components, then there is a radial force and there is a tangential force. Tangential force is responsible for increasing or decreasing the speed, and radial force is responsible for changing the direction. So when we are talking about uniform circular motion, there is only change in direction. Constant speed, there is no change in speed. There is only change in direction. Change in direction. So initially if a particle is starting from here, its speed was v. यहाँ पे भी speed क्या है? It's v. It is v and v. But here velocity is in this direction. If we take plus j plus I, then this is v in j cap.
v in minus I cap, v in minus j cap, v in plus I cap. So direction is changing. So there is a change in velocity. It means there is a change in the direction, but there is no change in speed. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स जो कि either it is in the direction of velocity, either it is in the direction of velocity or in the opposite to the direction of velocity, it is not there. Tangential force and tangential acceleration are not there. There is only a centripetal acceleration and centripetal force. Because the particle is moving in a circle, तो वहां पे centripetal force and centripetal acceleration is must, otherwise it cannot move in a circle. तो अब यहाँ पे क्या है भाई, वेलोसिटी तो कैसी होगी, लीनियर वेलोसिटी अगर हम देखें, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, है ना, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल. एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स इज ऑलवेज रेडियल, फोर्स इज ऑलवेज रेडियल, force is always radial, acceleration is always radial because there is no component in tangential direction. यहाँ पे कोई component नहीं है, तो net force will be always in this direction. So angle between F net and speed at any instant, यहाँ पे जब है force is only in this direction, force is only in this direction, force is only in this direction. Always V and net force, always V and net force are at an angle 90 degree. Always V and net force are at an angle 90 degree. If we take the small displacement, इस छोटे से अगर हम small displacement देखें, तो यहाँ पे displacement ऐसा है ना? So displacement ds and f net are always at 90 degree. या statement में you can write, I will not write this statement here. So f net and displacement are always at 90 degree. So if you talk about force, work. So work done by F centripetal in uniform circular motion is ds dot f net dot ds into f net into cos 90 degree. So it is going to be 0 because displacement and f net are at 90 degree. Work done by centripetal force या फिर work done by net force. Work done by net force in uniform circular motion is 0. Work done by net force in uniform circular motion is 0. जो भी net force लग रहा है that is centripetal only and it is perpendicular to the displacement. It means the work done by net force is 0. There is no work done by the net force यहाँ पे in case of uniform circular motion. And if you talk about the power, तो power क्या आ जाएगा यहाँ पे? Power होता है किसी भी instant पे F dot V. So again F and V are perpendicular. So F V cos 90. Power developed is again 0. Power developed is again 0. जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, it is the work done कितना आ रहा है? Work done is 0. ठीक है, तो हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि force is not doing any work and there is no change in kinetic energy. Force is not doing any work and also there is no change in kinetic energy. If there is no work done, kinetic energy में भी change क्या होना चाहिए? 0. Work energy theorem में हमने पढ़ा था. If there is no work done, it means change in kinetic energy must be 0. यहाँ पे 0 है because initially velocity speed was v. There is no change in kinetic energy. If it keeps on rotating like this for years, then also it will have the same velocity. अगर ये f net जैसा का वैसा लग रहा है, ये velocity जैसी की वैसी है, यहाँ पे क्या होगा? There won't be any work done by this force and it will keep on moving with v and it will have a kinetic energy equal to half mv square. Clear? अब यहाँ पे हमने ले लिया कि v speed है या फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा है which is a constant. तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे टाइम पीरियड आता है कि भाई if it is rotating या फिर if it is moving in a circle with speed omega, with angular speed omega और linear speed v, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवॉल्यूशन. तो क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई r डिवाइडेड बाई v. 2 पाई r, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 पाई r. जस्ट ओपन करो उस रस्सी को which was wrapped around the pulley. So in one revolution it will be of length 2 pi r and with what speed we have covered it? Speed v. So time period t is equal to 2 pi r by v. Or if you want to write in terms of angular variables, तो हमने कितना angular displacement किया? Angular displacement was 2 pi and कितना टाइम लगा? टाइम हमें लगा ओमेगा. So time period क्या आता है? 2 pi. Time period of revolution is 2 pi r by v or 2 pi by omega. ठीक है? So to complete one revolution,
कितना टाइम लगेगा उसको, 2 पाई r by v और 2 पाई by ओमेगा। तो ये क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आती है कि भाई कि आपका जो रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी मतलब कि आप किसी गिवन टाइम में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं आप किसी गिवन टाइम में। तो क्या होता है हमारे पास ये तो आ जाएगा सेकंड में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, है ना, 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। वैसे इतना बहुत इसको टफ नहीं समझना है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पहले से आता है, v डिवाइडेड बाई 2 पाई r। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। सो दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे भी हमारे पास कई टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें पहले एक वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो क्वेश्चन लिखेंगे that a particle is moving in a circle with omega is equal to 5 radians per second. Its radius is 5 meter. These are the points A, B, C and D. ठीक है? These are the points A, B, C and D. So we have to find out when the particle is moving from A to B, A to B, then C, then D. तो we have to find out the delta omega, या फिर लिख लो find out, डायग्राम बनाएंगे ये और लिखो find out change in angular velocity, change in angular velocity, change in linear velocity, change in linear speed and acceleration when the particle moves from पहला लिखेंगे A to B, C, D, इसी तरीके से लिख लो। When particle moves from, फर्स्ट है A to B, C and D। तो आपको इसमें करना क्या है, when it moves from A to B तब सब कुछ फाइंड आउट करो, A to C तब सब कुछ फाइंड आउट करो, A to D then again find out everything। और सिर्फ ये करके मैं बताऊंगी आपको, उसके बाद ये भी करना है कि B to C, D, A, थर्ड C to D, A, B and then D to A, B, C। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको जस्ट एक प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट करने की, है ना। तो ये फर्स्ट वाला हम लोग करते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द सेम थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, उसमें बी पार्ट में लिख लो, ये तो ए पार्ट हो गया, ए पार्ट में फिर 4 पार्ट हो गए, बी पार्ट में लिखना है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट when particle moves from A to B, A to C, A to D and A to A, A to B, A to C, A to D and A to A. This is the second part. So यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा सिंपली बताओ, ओमेगा ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ओमेगा इज ऑलवेज लाइक दिस, पार्टिकल हमेशा ऐसे जा रहा है ना। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, it is 5 radian per second and direction is out of the plane, and which is not changing। आप कभी भी देख लो, it is always 5 radian per second out of the plane। तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा इज 0। अगर डेल्टा ओमेगा 0 है, it means is there any alpha, is there any angular acceleration? Angular acceleration क्या जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 because there is no change in omega, ठीक है। is there any tangential acceleration? Is there any tangential acceleration? No. Why? Because omega is not changing, मतलब यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है, हमेशा स्पीड क्या है, स्पीड इज r omega, which is speed is r omega, which is how much, r is 5, omega is 5, it is 25 meter per second। Speed is always 25 meter per second। But is there any centripetal force? Yes, centripetal acceleration? Yes, because it is moving in a circular motion, definitely there is going to be a centripetal acceleration and that will be finding out कि ये कितना है ना। तो यहाँ पे अब हम लोगों को पूछा है कि change in speed
when it is moving from A to B, is there any change in speed? No. A पे स्पीड क्या है, कैसे स्पीड बना लो, यहाँ पे कितना है, इट इज 25 जे कैप, ऊपर 25, इधर 25 माइनस 25 आई कैप, यहाँ पे है माइनस 25 जे कैप एंड यहाँ पे है 25 आई कैप. एनी डाउट? 25 जे कैप आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, है ना. कहाँ पे है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एंड इट इज केप्ट एट डिस्टेंस r. तो यहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगी वो क्या होगी, r ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल 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 टेंजेंशियल. So when it is moving from A to B, there is no change in speed. A to C, no change in speed. A to D, no change in speed. But change in velocity, change in velocity क्या आएगा, delta V is equal to V final minus V initial. So जब A to B it is moving, delta V will be V final is minus 25 I cap, V initial is 25 J cap, है ना. माइनस 25 आई कैप इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल इज 25 जे कैप. तो क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड की अगर बात करो आप तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 25√2, है ना. और अगर आप डायरेक्शन देखो, सो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस, वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स ना. सो माइनस 25 आई कैप माइनस 25 जे कैप. 25 जे कैप इज दिस, माइनस 25 जे कैप इज दिस. So what we are doing? We are adding two vectors, minus 25 I cap minus 25 J cap. तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? It will be 25√2 and it will be in this direction. यही होगा रिजल्टेंट, है ना. तो कुछ इस डायरेक्शन होगा, minus 25 I cap minus 25 J cap. This will be the direction. ठीक है. So now when it is moving from A to C, जब A to C जाएगा, so delta V from A to C क्या हो जाएगा, V final is this minus 25 J cap minus initial is 25 J cap, it is minus 50 J cap, minus 50 J cap. When it is moving from A to D, A to D जब जाएगा तो delta V A to D will be initially is finally 25 I cap, initial is 25 J cap. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस केस में माइनस 25 जे कैप मतलब डाउनवर्ड, इस केस में ये हो गया 25 आई कैप एंड माइनस 25 जे कैप, माइनस 25 जे कैप. दिस विल बी द रिजल्टेंट. ठीक है. सो दिस इज द डेल्टा वी. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी फाउंड आउट द चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए से ए पे जब आएगा तो अगेन पहले भी 25 बाद में भी 25, अगेन इट हैज गेन्ड द सेम वेलोसिटी. तो यहाँ पे जब आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई. नाउ वी कैन फाइंड आउट द चेंज, वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. अगर यहाँ पे आपको पता है कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कैसे निकालेंगे, यू नो हम लोग यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी वाज दिस, चेंज इन वेलोसिटी वाज दिस. और टाइम कितना लगा, इट इज कवरिंग 5 रेडियन पर सेकेंड. तो यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकेंड एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, पाई बाई 2. तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस डिवाइडेड बाई 5 रेडियंस पर सेकेंड. कितना आ जाएगा ये, 5 पाई बाई 10 सेकेंड्स, पाई बाई 10 सेकेंड्स. तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी इज हाउ मच, 25√2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, पाई और यहाँ पे 10. सो इट इज 250√2 बाई पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इतना, ये सब तो हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपसे पूछे कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या आ जाएगा, वहां पे आपको स्पीड पता है, यस. तो इसके पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v² बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r. v² बाई r अगर रखो तो v क्या है, 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 और ओमेगा स्क्वायर r रखो तो 5 स्क्वायर इंटू 5 कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। सो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी हैव a uniform circular motion, there is no tangential acceleration, there is no tangential acceleration, there is only a radial acceleration or centripetal acceleration, which is equal to v square by r or omega square r, where v, value of v and value of omega is always constant, only there is a change in direction of velocity. clear है? so ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोगों ने देखा था. सेकेंड पार्ट क्या था कि ए से बी में व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. इसमें कोई शक नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है और आप सबको ये प्रॉब्लम्स आ गई होंगी. सो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डॉग ऑफ मास 10 kg tries to run with speed 5 meter per second. If the owner holds the chain of length 2 meter which is tied to the neck of the dog in order to move the dog in a circular motion, then find the tension developed in the rope या in the chain. So क्या है क्वेश्चन कि a dog is which is of mass 10 kg is trying to run with speed 5 meter per second and we are trying to move it in a circle and the length of the rope which is tied to the neck of the dog is 2 meter. Then we have to find out the tension developed in the chain. Tension developed in the chain. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है. आपको स्पीड गिवन है, रेडियस गिवन है. सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. यहाँ पे हमें स्पीड क्या गिवन है? इट इज रनिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड एंड व्हेन इट विल रन इन सर्कुलर मोशन इट विल रन विद 5 मीटर पर सेकेंड ओनली. अगर अलग से कुछ स्पेसिफाई करता देन we have to think about that. लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. इट मीन्स इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड. लेंथ ऑफ द रोप या लेंथ ऑफ द चेन इज 2 मीटर्स. इसका मतलब द डॉग इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 meters. So we have its speed, we have the radius, we have mass. Can we find out the centripetal acceleration or centripetal force? Yes. What it will be? Centripetal force is equal to mv square by r. Centripetal force required for a particle or an object of mass m to move with speed v in a circle of radius r is equal to mv square by r. So यहाँ पे क्या given है? 10, v is 5 and r is given as 2 meter. तो कितना आ जाएगा ये? 125 न्यूटन. So required centripetal force is 125 Newton. Required centripetal force is 125 Newton. Required centripetal force is 125 Newton. ठीक है. अब ये required centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है? This is provided by the tension in the rope, है ना. Why that object or why that dog will start moving in a circle? क्योंकि हमने उस चेन में फोर्स लगाया and then we made it to move in a circle. So the required centripetal force, the necessary centripetal force is provided by the tension generated in the rope. With the help of that tension it can move in the circular motion. ठीक है. Next question, it is of relative angular velocity, but कर लो उस क्वेश्चन को भी. So यहाँ पे I'll draw a diagram and we have to find the relative angular velocity. So if an object is moving with speed v, ठीक है, and it is constantly moving on this path. यहाँ पे its distance in y direction is b, ये y है, ये x है. It is constantly moving with speed v in this direction only. Then we have to find out the relative angular velocity or angular velocity with respect to the origin. Find out angular velocity of point P. Find out angular velocity of point P with respect to the origin. With respect to the origin, and this angle is theta. क्या आप ये कर सकते हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? origin पे बैठ के कोई observer है which is observing this object which is moving on this line with speed v, and हमें बताना है कि at when it is making angle theta, उस टाइम पे what will be its angular speed with respect to the observer which is sitting here. तो कैसे करते हैं इसको? तो यहाँ पे क्या है? ये इस तरीके से जा रहा है. इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा. If this is theta, this is also theta, this is theta,
and this is 90 minus theta. तो ये होगा v sin theta and this will be v cos theta. अब यहाँ पे this component is not involved when we are talking about angular velocity or angular speed. Only this component is involved. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू v sin theta, है ना. क्या करते हैं हम, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r. तो v sin theta divided by this distance. Now this distance how we will find out? If this is theta, this is also theta. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हमने बोला r, then r sin theta is equal to b, और r is equal to b by sin theta, b divided by sin theta. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू v by b sin square theta, v by b sin square theta. क्लियर है? So this is about the uniform circular motion. इस पे हम और क्वेश्चंस करते जाएंगे when we will study थोड़े बहुत और टॉपिक्स, फिर उसमें क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे 2-4 टाइप के, and then we'll solve some more problems. So now write non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion, again it is very simple. When you are saying non-uniform circular motion, it means its speed is changing, its velocity is changing. In non-uniform circular motion, both are changing. When we are talking about circular motion, definitely there is a change in velocity, but when we are talking about uniform circular motion, there is no change in speed or there is no change in magnitude of velocity, but in non-uniform circular motion, there is a change in direction as well as magnitude. Clear? So if there is a change in direction, centripetal acceleration will be there. If there is a change in magnitude, it means tangential acceleration will be there. So net acceleration is not going to be tangential or radial. Like in uniform circular motion, the net acceleration or the net force was towards the center, because there was no tangential acceleration. Whatever force was there, it was towards the center. It was in the radial direction. But in non-uniform circular motion, जो net force होगा या फिर net acceleration होगा, it will be neither tangential nor radial, कुछ बीच में आएगा, है ना, resultant दोनों का. तो इसमें simply आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास particle will start with some velocity and then it will have some a radial या a centripetal and some a tangential. Resultant will be something like this. A net will be equal to a tangential square plus a radial square, इसका root. And at certain instant its speed is continuously increasing or decreasing, है ना. अगर आप यहाँ पे बोलो कि मान लो a tangential is constant, it can be constant or variable. Like we studied in kinematics, there can be a constant acceleration or variable acceleration. अगर आपके पास constant tangential acceleration है, what we'll do, we'll use those three equations. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हम वो उसको यूज कर सकते हैं, है ना. या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हैं. अगर हम पूरे इक्वेशन को r से डिवाइड कर दें, विल गेट एंगुलर. अगर एंगुलर में r मल्टीप्लाई कर दें, विल गेट द लीनियर वेरिएबल्स. सो व्हाट वी कैन डू, अगर यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देन डेफिनेटली वी कैन यूज दोस थ्री इक्वेशंस. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. So let's say it's a constant acceleration. तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो वेलोसिटी अभी बढ़ रही है, so velocity will increase. यहाँ पे आएंगे तो कुछ वेलोसिटी v डैश हो जाएगी, ठीक है. तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, it means the centripetal acceleration will also change, because centripetal acceleration क्या होता है, v square by r. If v is changing, it means centripetal acceleration will also change. तो at certain instant if velocity is v, then tangential acceleration क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैसे भी हम लिख सकते हैं अल्फा आर, ठीक है, प्लस रेडियल एक्सेलरेशन विल बी v स्क्वायर बाय r. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड देन टेक द रिजल्टेंट. दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सेंट्रीपेटल, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ यहाँ पे हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, इट वाज रेडियली इनवर्ड, है ना, सेंटर की तरफ था. अब वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल दिस थीटा ऑफ एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी. तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से क्या जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a centripetal और a radial divided by at. So at this angle with tangential direction or with the direction of velocity, the net acceleration will be at this angle, such that a net tan theta is equal to ac divided by at.
तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज एन एंगल बिटवीन v एंड a नेट व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर a नेट इस डायरेक्शन में है तो f नेट भी इसी डायरेक्शन में होगा। इट मींस द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द फोर्स, नेट फोर्स इज नॉट 90 डिग्री, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था। और वहां पे जब ऐसा था तो हमें क्या मिल रहा था, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स on the particle having uniform circular motion is 0 and there is no change in kinetic energy। but यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a change in kinetic energy, there is a work done by net force, क्योंकि यहाँ पे एंगल बिटवीन, अगर छोटा सा है डिस्प्लेसमेंट देखो ds, the angle between ds and a net या फिर f net, a net या f net and ds के बीच में एंगल क्या है, थीटा। so there will be some work done by the net force, there will be some work done by the net force, and because there is some work done by net force there will be change in kinetic energy and we can see that its speed is increasing or decreasing, basically it is changing, it means there is a change in kinetic energy। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें बहुत भयानक वाली चीजें नहीं है, सिंपल सिंपल बातें ही हैं और सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। सो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a disk starts from rest and gains an angular acceleration equals to 3t square minus 2t, 3t square minus 2t। find the angular speed after 2 seconds, find the angular speed after 2 seconds। तो यहाँ in this case we have a non-uniform acceleration, है ना, constant acceleration नहीं है, it's a variable acceleration, alpha is equal to 3t square minus 2t। तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। we know that alpha is nothing but d omega by dt, alpha is nothing but d omega by dt। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d omega is equal to alpha dt, जो कि हम काइनेमेटिक्स में बहुत बार कर चुके हैं। at t is equal to 0, ओमेगा इज 0, at t is equal to 2, ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा माइनस 0, इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t dt 0 to 2, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर 3t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2, ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका मतलब इन 2 seconds it will gain the angular speed of 4 radians per second। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a cyclist moving with 5 meter per second, a cyclist moving with 5 meter per second applies brake at circular turn of radius 25 root 2 meter। A cyclist moving with 5 meter per second applies a brake at circular turn of radius 25 root 2 which reduces its speed at a rate of 0.5 meter per second every second, which reduces its speed at a rate of 0.5 meter per second every second। then find the net acceleration। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर टर्न है ऑफ रेडियस 25 रूट 2 मीटर, एक सर्कुलर टर्न है रोड पे ऑफ 25 रूट 2 मीटर, ऐसा कुछ मान लो, ऐसे जा रहा था रोड एंड देन देयर इज अ सर्कुलर टर्न एंड इट इज लाइक दिस, ऐसा रोड है। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 25 रूट 2 मीटर एंड दिस साइक्लिस्ट इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड नाउ दे आर सेइंग कि इसने जब अप्लाई किया ब्रेक तो इसका एक्सेलरेशन क्या आया, इस पे डी एक्सेलरेशन लगा, एक एक्सेलरेशन व्हिच इज रिड्यूसिंग इट्स स्पीड एट व्हाट रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड इसकी स्पीड कम हो रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, वही हुआ ना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल है। थोड़ी सी लैंग्वेज को अगर हमने चेंज किया तो कंफ्यूज नहीं होना है उसकी वजह से। तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये क्या है, इट इज डूइंग व्हाट, इट इज डिक्रीजिंग द स्पीड,
इट इज डिक्रीजिंग द स्पीड। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इस पे रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लगेगा, v स्क्वायर बाई आर। v क्या है 5 स्क्वायर, r क्या है 25√2। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नेट एक्सेलरेशन। तो a नेट विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 0.5 या फिर लिख लो हाफ स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 25/25√2 इट इज 1/√2। तो ये आ गया 1/√2 स्क्वायर, इसका 1/4 प्लस 1/2 इट इज 3/4। इट विल बी 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे रूट भी है तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस इज विजिबल। कितना आ रहा है हमारे पास √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऊपर लिख देते हैं, बाकी यू कैन कैलकुलेट दिस। तो ए नेट हमारे पास क्या जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/2 इट इज 3/4 and √3/2 meter per second square. So this is the net acceleration which is acting on this cyclist. Net acceleration acting on this cyclist. ठीक है, तो हमने इसमें सारा पढ़ लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड देन लीनियर, टेंजेंशियल, उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल फोर्स। एंड एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि mv²/r is not a force, कोई अलग से फोर्स नहीं है। When we say a particle is moving with acceleration a, it means a force is acting on this particle which is equal to ma. So similarly, when a particle is moving in a circular path of radius r and it is moving with speed v, then it needs a force. उस सर्कल में घूमने के लिए it requires a necessary centripetal force and which is provided by different forces: electrostatic, friction, normal, tension, gravitation. And जो भी net force आएगा, there will be a force in radial direction which will be equal to mv²/r, which will be equal to mv²/r. तो हमने सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स, मतलब जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं थीटा, ओमेगा, अल्फा, एटी, एसी, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसकी थोड़ी हम डायनामिक्स पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो पहली चीज हमें क्या पता है कि whenever there is a circular motion there will be a centripetal force necessary, जो कि उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ केसेस पढ़ने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, whenever we are talking about circular motion, तो सर्कुलर मोशन क्या होगा, एक प्लेन में होगा। हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन को ऐसे चेंज नहीं कर रहे कि पहले ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमा दिया, घुमाते घुमाते हमने उसको चेंज कर दिया। नो, यहाँ पे अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक सर्कल ऐसे घूमता रहेगा, मतलब उसका प्लेन फिक्स्ड है, जिस प्लेन में वो घूम रहा है वो फिक्स्ड है। सो अब यहाँ पे क्या है, whenever we are talking about a circular motion, so let's say कि एक पार्टिकल है जो कि इस प्लेन में घूम रहा है। ठीक है, दिस इज द प्लेन इन विच इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। सो दिस पार्टिकल इज नॉट गोइंग अप और डाउन ऑफ दैट प्लेन। ठीक है, एक पार्टिकल अगर इस सर्कल में घूम रहा है, इट मीन्स नाइदर इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन नॉर आउटसाइड द प्लेन। सो बेसिकली इसका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला जो मोशन है वो नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसका कोई मोशन नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसका कोई मोशन नहीं है और ना ही वो आने वाला है बाद में। अगर कोई फोर्स उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर कोई फोर्स लग जाए देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बट यहाँ पे अभी क्या है, सिर्फ हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, कोई और मोशन इसमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इससे कंबाइन नहीं करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, देन व्हाट वी हैव टू डू। आपके पास दो तीन चीजें हैं, उसको लिख लेंगे, दो तीन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। Identify the plane of circular motion. Net force perpendicular to the plane of circular motion is 0. Net force perpendicular to the plane of circular motion is 0. Net force perpendicular to the plane of circular motion is 0. And third is the net force towards the center of the circle. The net force towards the center of the circle will be equated with mv²/r. Net force towards the center of the circle will be equated with mv²/r. क्या कर रहे हैं हमने देखा कि भाई पार्टिकल इज मूविंग इन दिस प्लेन, इस प्लेन में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इट मीन्स पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन,
inside or outside the plane, ठीक है. It means there is no net force in this particular direction. अगर उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है मतलब उस डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. अब बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो सेंटर, जो भी सेंटर होगा सर्कल का, है ना, जो भी सेंटर होगा सर्कल का, टुवर्ड्स दैट सेंटर देयर मस्ट बी अ फोर्स. क्लियर. अब इट कैन मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे. इट कैन मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड व्हिच विल इक्वेट टू mv²/r. तो यही हमें करना है. सो अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम केसेस के फॉर्म में देखेंगे. सो लेट्स से पहला हेडिंग डाल लो, कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम. सो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आई विल गिव द एग्जांपल. सो दिस इज द कोनिकल पेंडुलम. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस मेडल, whatever this small part is there, object, it is moving in a circle in this plane, in this horizontal plane, and with the help of this rope it is forming a cone. अब ध्यान से देखो, it is forming a cone. You can also do at your home, ऐसे करके देख लो, it is forming a cone. तो ये basically it's a pendulum, मतलब ऐसे लटका हुआ तो हमने इसको बोल दिया pendulum, and because it is forming a cone kind of thing, तो हमने इसको बोला conical pendulum. So if in conical pendulum, if the object is moving with speed v, ठीक है, if object is moving with speed v, तो ऐसा कुछ कोन बन जाएगा, है ना. So it is moving with speed v. अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये स्पीड v से जा रहा है और जिस सर्कल में जा रहा है इसकी रेडियस है r, then what is the tension in this string? What is the tension in this string? तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. See, now this object is moving in a circle. This object is moving in a circle which is in this plane. इस प्लेन में जा रहा है, इसका मतलब ये ना प्लेन के ऊपर जा रहा है ना प्लेन के नीचे जा रहा है. It means in this direction, जो प्लेन जो है इस प्लेन में हो जा रहा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है वो क्या होंगे, जीरो होंगे. Now here we can see that this object इस पे नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg और ऊपर ऐसे लग रहा है टेंशन. मान लो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था ऐसे था, तो इस पे नीचे लग रहा है mg, नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है इस पे mg, एंड इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन. तो मान लो कि हाँ, ये एक और चीज ये कि दिस conical pendulum is making angle theta with vertical. This conical pendulum is making angle theta with vertical. तो अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखो, इस पे नीचे लग रहा है mg and in this direction there is a force tension. Now what we are seeing that this object is moving with speed v. Again this is a uniform circular motion. This object is moving with speed v in a circle of radius r. It means there must be a centripetal force and there should be only centripetal force, because this is not having a non-uniform circular motion, it is having a uniform circular motion. It means the force should be only centripetal. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, we have a force which is tension which is acting. क्या हो रहा है यहाँ पे, this conical pendulum is making angle theta with vertical. ये angle theta है with vertical. तो क्या होगा, tension will make angle theta with vertical. Tension will be along the length of this string. So tension will make angle theta with vertical. This angle is theta, so this angle will also be theta. Alternate interior angle. So we have a force tension, another force mg, and only two forces are acting on this object. And what is the net force? Because it is moving with speed v on a circle of radius r, there must be and there should be the only force F net equals to mv²/r. उस पे सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए. तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, which is this, towards the center, and what should be the magnitude, mv²/r. Clear है? We have two forces and because this object is having a uniform circular motion, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv²/r. तो दिस शुड बी resultant of these two forces should be mv²/r. Can you form the triangle? Yes. तो यहाँ पे क्या है, this is tension, first force, this is second force mg.
first vector plus second vector is equal to resultant vector which should be mv square by r. This angle is theta. And इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और हम जो हमारा यूजुअल मेथड क्या होता है कि भाई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन नेट फोर्स शुड बी 0। तो हमारे पास क्या जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है mg, इधर टेंशन था तो उसका कंपोनेंट आएगा विच इज t cos थीटा। सो t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा is equal to mv square by r. Why I am writing like this? Because t cos theta will balance mg, because of which this particle is not moving perpendicular to the plane of circular motion, and it needs a centripetal force which will be provided by this component of tension, which will be provided by this horizontal component of tension, है ना? It is moving on this circle, it is moving on this circle, और जिसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर है इस जगह पे। तो टेंशन का जो ये कंपोनेंट है, टेंशन का जो ये कंपोनेंट है, इट विल प्रोवाइड दी नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड टेंशन का जो ये कंपोनेंट है, इट विल बैलेंस दी फोर्स mg. सो हियर वी हैव, डिवाइड करो, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg. ये इक्वेशन बहुत सारे केसेस में आएगा तो इसको ध्यान से लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि इफ कोनिकल पेंडुलम इज मेकिंग एंगल थीटा एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल on which it is moving is r, then what is the speed? किस स्पीड से घूम रहा है? या फिर आपसे पूछ लेगा कि if it is moving with speed r on a circle of with speed v on a circle of radius r, then what is the angle made by conical pendulum? So this is the relation. तो यहाँ पे tan थीटा, या फिर आप थीटा लिख सकते हो tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg, या फिर आप लिख सकते हो v is equal to root rg tan theta. If an object is moving if an object is making conical pendulum where the radius of the circle is r and angle made by the string with the vertical is theta, then what is the speed? It is rg tan theta, root rg tan theta. क्या है ये? root rg tan theta. अब हमने उसी को ट्राइंगल से किया है, ट्राइंगल से भी हम लोगों ने वेक्टर्स बहुत सारे सॉल्व किए, तो यहाँ से डायरेक्टली either you can do it this way, और आप यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, I can write tan theta is equal to this divided by this. तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg, सेम रिजल्ट्स वी हैव गॉट। ठीक है, तो ये हो गया केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। अब सेम चीज होती है व्हेन वी आर टेकिंग टर्न्स इन दी, या फिर सर्कुलर टर्न्स ऑन रोड्स, सर्कुलर टर्न्स ऑन रोड्स। तो हमारे पास जब हम लोग सड़क पे जा रहे होते हैं तो कई जगह क्या होते हैं, टर्न्स आते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पाथ। हम लोग ऐसा मान सकते हैं दैट पार्ट ऑफ द रोड इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस r, जो भी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग टर्न ले रहे होते हैं तो वहां पे वी नीड अगेन अ सेंट्रीपेटल फोर्स। इफ यू वांट टू मूव इन अ सर्कल यू नीड अ सेंट्रीपेटल फोर्स, आपको एक सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है। अगर आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तो आप उस सर्कुलर टर्न में नहीं जा पाएंगे। तो मान लो ऐसा सर्कुलर टर्न है और आप इस स्पीड से जा रहे थे, आप इधर ही चले जाओगे अगर आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहेगी, और स्पीड विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन, एंड आप क्या करोगे, इसी डायरेक्शन में निकल जाओगे। बट यू वांट टू टर्न ऑन दिस पाथ, देन यू नीड अ फोर्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। इधर आपके व्हीकल पे एक फोर्स लगना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या होता है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। जो भी नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे जब फ्रिक्शन होगा तो हम लोग उस केस में फ्रिक्शन को इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपेटल फोर्स से। लेकिन कभी कभी व्हेन वी हैव स्लिपरी रोड्स, जब फ्रिक्शन बहुत कम होता है, या समटाइम्स लेट्स से वर्स्ट केस ले लेते हैं कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है ही नहीं फ्रिक्शन। वैसे ऐसा तो मुश्किल है कि ऐसा कोई सरफेस हो जहां पे फ्रिक्शन ना हो, बट लेट्स से देयर इज नो फ्रिक्शन, तब फिर हम क्या करेंगे, तो वो दोनों केस हम देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से हमारा काम बन गया, ठीक है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट था कि वी वर एबल टू टेक दी टर्न। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आपका जो भी व्हीकल है इसका मास है m, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर टर्न इज r,
एंड यू आर गोइंग विथ स्पीड v, ठीक है, आप स्पीड v से जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? इट कैन बी म्यू एम जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू एम जी। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। व्हेन यू आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, व्हेन यू वांट टू टेक द टर्न, तो यहाँ पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? F max is equal to mu mg. It means the maximum centripetal force which is possible. जो आपका फ्रिक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। सो मैक्सिमम सेंट्रीपेटल फोर्स पॉसिबल कितना है? इट इज म्यू mg। इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन नहीं लग सकता ना। इट मींस मैक्सिमम सेंट्रीपेटल फोर्स इतना है। और सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? mv स्क्वायर बाई r। इसका मतलब यहाँ पे इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आपको जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, हमने लिख दिया यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन कैन चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 0 टू म्यू mg। अगर आपकी स्पीड कम है, ये क्या होगा? दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। इट विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। सो अगर, और ये क्या है हमारा? mv स्क्वायर बाई r। तो अगर आप यहाँ पे v को बढ़ाओगे, these two are constant, अगर आप v को बढ़ाओगे इट मींस यू नीड मोर सेंट्रीपेटल फोर्स, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। और बढ़ाओगे फ्रिक्शन विल इंक्रीज मोर, और बढ़ाओगे फ्रिक्शन विल इंक्रीज मोर। लेकिन क्या एक पॉइंट के बाद फ्रिक्शन बढ़ेगा? नहीं, इट कैन इंक्रीज अप टू म्यू mg। इसका मतलब आप अपनी वेलोसिटी को एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही बढ़ा सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे, यू नीड मोर सेंट्रीपेटल फोर्स which this friction cannot provide, and because of which you will not be able to take the turn। आप यहाँ पे टर्न नहीं ले पाओगे, आप ऐसे भाग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हम लोग लिख सकते हैं mv स्क्वायर मैक्स बाई r, कि भाई मैक्सिमम आप कितने स्पीड में हो कि आप टर्न ले पाओगे। इसलिए क्या होता है? सर्कुलर टर्न्स पे वहां पे एक स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है कि डोंट गो बियॉन्ड दिस स्पीड, अदरवाइज इट इज नॉट सेफ फॉर यू। तो वो उसको हम बोलते हैं रेटेड स्पीड। उसको हम बोलते हैं रेटेड स्पीड, कि इफ यू गो बियॉन्ड दिस स्पीड देन देयर इज अ चांस ऑफ जो भी कुछ डेंजर है, तो वहां पे बोर्ड्स लगे होते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। तो क्या होगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रिक्शन, कि सिर्फ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपेटल फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v max square by mv max square by r is the maximum centripetal force which is maximum friction, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? v max square is equal to mu m, m कैंसिल हो गया, mu r g। इसका मतलब v max is equal to आया रूट म्यू आर जी। इसका मतलब v max कितना है? रूट म्यू आर जी। इट मींस इफ यू आर मूविंग विद दिस मच स्पीड, वो कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां पे बोर्ड लगा देते हैं कि भाई इतनी स्पीड मैक्सिमम से जाना, इससे ज्यादा से जाओगे तो खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड विथ विच वी कैन सेफली क्रॉस द रोड, या फिर वी कैन सेफली टेक द टर्न, नॉट क्रॉस द रोड, वी कैन सेफली टेक द टर्न इज रूट म्यू आर जी, इज रूट म्यू आर जी। मतलब हमारी जो स्पीड है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर रूट म्यू आर जी फॉर सेफ टर्न। क्लियर है? तो यही स्पीड वहां पे लगी होती है कि इस स्पीड से इस स्पीड के ऊपर नहीं जाना है, ठीक। अब यहाँ पे केस ये है कि व्हेन देयर इज अ लेस फ्रिक्शन, और लेट्स से द केस ऑफ नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये वर्स्ट केस ले लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है? इस केस में दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो रोड्स जनरली कैसे होते हैं? रोड्स जनरली होते हैं हॉरिजॉन्टल। सो व्हेन वी हैव हॉरिजॉन्टल रोड, उस पे अगर एक कार जा रही है, ठीक है, दिस इज द क्या बोलते हैं, बैक व्यू, ये ऐसे जा रही है कार इनसाइड द प्लेन, तो इसका बैक व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इफ दिस कार इज मूविंग विद स्पीड v, जो भी स्पीड से जा रही है, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो क्या होगा? mg विल एक्ट लाइक दिस, नॉर्मल विल एक्ट लाइक दिस, बस, ठीक है। बोथ दी फोर्सेस आर इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन हमारा जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है, अगर हम सर्कुलर टर्न पे आए तो हमारा जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो तो हॉरिजॉन्टल ही है ना। प्लेन ऑफ सर्कुलर, जैसे ये ऐसे जा रही है कार, ऐसे जा रही है कार,
अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, बट नाउ इट हैज टू टेक सम टर्न। तो यहाँ पे इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या करें, फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली टू पॉसिबल फोर्सेज आर देयर, एन एंड एम जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रोड्स हैं उसको हम लोग बैंक करते हैं या फिर उसको बेंड करते हैं एट एन एंगल। दिस इज द यूजुअल हॉरिजॉन्टल रोड। उसको हमने इफ दिस कार हैज टू टेक अ टर्न लाइक दिस, इसको अगर इस डायरेक्शन में टर्न लेना है, इट मींस वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि हमारे सेंटर का सर्कल तो इधर ही आएगा ना, तो हमें एक फोर्स चाहिए इन दिस डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो अब n इज लाइक दिस, mg इज लाइक दिस, वी कैन नॉट चेंज mg, बट हम n को चेंज कर सकते हैं। तो हम रोड को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रोड एंड हमने ऐसे टर्न किया रोड को। इससे क्या होगा, दिस नॉर्मल विल एक्ट लाइक दिस। नाउ कार को ऐसे टर्न लेना है, अगर टर्न ऐसे है तो कार को ऐसे टर्न लेना है, इट मींस वी नीड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, रोड को ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है, कुछ दिस वाज द हॉरिजॉन्टल, उसको हमने थीटा से हमने उठा दिया, थीटा एंगल से हमने रोड को थोड़ा सा उठा दिया। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, दिस इज द हाइट, जो आउटर साइड वाला जो है एज ऑफ द रोड इज एट हाइट h, लेट्स से, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड। तो हमने इसको ऐसे उठा दिया एट एन एंगल थीटा। नाउ व्हाट विल हैपन, mg विल एक्ट डाउनवर्ड, normal will act in this direction, normal will act perpendicular to this plane, now perpendicular to the road, so it will act in this direction. So one component will give centripetal force, it will provide the necessary centripetal force, and one component will balance mg. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, we bank this road or we bend this road at an angle theta। अगर उसको इस तरह से सर्कुलर टर्न लेना है तो हम क्या करते हैं, this is the horizontal road, now we have lifted it, दिस एज जो आउटर एज है उसको हमने लिफ्ट किया एट एन एंगल या विथ अ हाइट h, और यहाँ पे एक एंगल बन गया थीटा। थीटा एंगल से हमने उसको, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे हमने थीटा एंगल से उसको बेंड किया है। नाउ उस केस में क्या होगा, व्हीकल इज गोइंग लाइक दिस। नाउ ये उसका पीछे वाला हिस्सा है ना, सो व्हीकल इज गोइंग लाइक दिस नाउ विथ स्पीड v, एंड ये जो रेडियस है, radius of this circular turn is r, ये radius of this circular turn is r, है ना, radius of circular turn is r, mass is m of the vehicle, this angle is theta, और v स्पीड से जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, normal will act like this perpendicular to the road, perpendicular to the plane of the road, it will act like this। so ये हो गया n, this is mg, and mg, ये हो गया n, ये है mg। उस पे जो फोर्स लग रहा है हम अगेन ले रहे हैं कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स बस रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स नहीं रहेगा। सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड शुड बी इक्वल टू mv²/r। अगेन ट्रायंगल बनाओगे, सेम ट्रायंगल बनेगा, n mg mv²/r, एंड नाउ एंगल, तो एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Now these two are perpendicular, ये theta, तो ये 90 minus theta, so normal will make angle theta with vertical. This is making theta with horizontal, this will make theta with vertical. So normal is making theta with vertical, normal is making theta with vertical. So यहाँ से हमने क्या लिखा, tan theta is equal to mv²/r divided by mg, v²/rg। सेम इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, हमें क्या मिला, सेम इक्वेशन। ओके, यहाँ पे नहीं है, उसको हमने रेस कर दिया। सो क्या था, पहले भी हमारे पास आया था tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। इफ यू वांट टू डू इट बाय इक्वेटिंग द फोर्सेस, तो क्या होगा, n का ये कंपोनेंट n sin थीटा विल गिव दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, एंड n cos थीटा विल बैलेंस the mg, n cos थीटा विल बैलेंस mg। सो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, tan theta is equal to v²/rg। सो अगेन क्या हो सकता है, या तो हम वेलोसिटी पहले डिसाइड कर लें या फिर थीटा पहले डिसाइड कर लें कि किस थीटा पे वी हैव टू बेंड दिस रोड, व्हाट शुड बी द बैंकिंग ऑफ दिस रोड। ठीक है, तो अगेन वहां पे बोर्ड लगे होते हैं, लेट्स से कि बैंकिंग ऑफ रोड हुई है बाय एन एंगल थीटा। अगर एंगल थीटा से बैंकिंग हुई है, देन व्हाट इज द सेफ स्पीड विथ व्हिच वी कैन क्रॉस द रोड, रोड इज rg tan theta। If the road is banked at an angle theta and the circular turn has radius r, then with what safe speed we can turn
we can take the turn is equal to v is equal to rg रूट rg tan थीटा। क्लियर है? तो वहां पे अगेन बोर्ड लगा देंगे कि भाई इतनी स्पीड से जाओ, बट डेफिनेटली वी ऑलवेज हैव फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो हमेशा होता है। तो दिस इज द केस, दिस इज द वर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। उस केस में क्या होगा, अगर थीटा पे बैंक्ड है रोड, देन वी शुड maintain the speed v is equal to root rg tan theta to cross the road safely। अब इसमें क्या होगा, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं मतलब दिस इज द ओनली स्पीड विथ विच वी कैन क्रॉस। अगर मैंने कम किया वेलोसिटी, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, एक बार रोड बन गई तो बन गई ना, थीटा चेंज तो नहीं होगा। सो v को अगर हमने डिक्रीज किया तो ये कांस्टेंट, ये r डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अगर हम v को डिक्रीज करते हैं तो रोड का ये जो टर्न है, यहाँ पे अगर घास है बहुत सारी तो आप इधर गिर जाओगे, और अगर आप v को बढ़ा देते हो इस रेटेड स्पीड से, इफ यू इंक्रीज योर स्पीड, तो आप इस वाले एंड पे इधर चले जाओगे, या तो आप छोटा सर्कल ले लोगे या फिर आप बड़ा सर्कल ले लोगे। तो इस केस में आप इस साइड गिरोगे, इस केस में आप साइड स्किड होगे, है ना, या तो इस साइड गिरोगे इफ यू हैव लेसर वेलोसिटी तो इस साइड गिरोगे, अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इस साइड गिरोगे। ये शायद एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने बाइक या साइकिल पे ट्राई किया है। तो अगर हम सर्कुलर टर्न ले रहे होते हैं तो बहुत कम भी स्पीड नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं रख सकते। कम रखा तो हम टर्न ले नहीं पाएंगे, वहीं पे कचरे में चले जाएंगे, और अगर ज्यादा किया तो फिर रोड से इस साइड बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द सेकेंड केस ऑफ v is equal to root rg tan theta और tan theta is equal to tan inverse v square by rg। अब नेक्स्ट केस है टर्न एरोप्लेन इन टेकिंग टर्न, एरोप्लेन while taking turn, you can write aeroplane while taking turn। अब यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन अगेन जब हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चल रहे होते हैं, लेकिन अगर बीच में उन्हें टर्न लेना है देन हाउ विल डू इट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप एरोप्लेन को देखो, बनाना तो नहीं आएगा बट उस पे एक नीचे mg लग रहा होगा, और ऊपर अगर वो नीचे नहीं आ रहा है मतलब ऊपर एक लिफ्टिंग फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, लिफ्टिंग फोर्स L। अब अगर इसे टर्न लेना है तो जैसे हम लोग घर में, हम लोग जब बचपन में खेलते भी हैं, व्हेन वी हैव टॉय एरोप्लेन, तो हम क्या करते हैं, भाई स्ट्रेट जाना है तो हम तो ऐसे लेके जाते हैं, बट जैसे ही टर्न लेना होता है तो एक नेचुरल हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, और दौड़ते दौड़ते इफ यू वांट टू टर्न द एरोप्लेन तो आप खुद ही ऐसे हाथ को ऐसे कर देते हो। इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, आप स्ट्रेट जा रहे हो देन यू विल कीप द एरोप्लेन लाइक दिस, बट इफ यू वांट टू टेक अ टर्न आप खुद ही ऐसे बेंड कर देते हो। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, क्योंकि वैसा होता है तो हमारे दिमाग में रहता है ये चीज। तो हम लोग जब टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग खुद ही इसको ऐसे बेंड कर देते हैं। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, या फिर एरोप्लेन ऐसा क्यों करता है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, L इज इक्वल टू mg, एवरीथिंग सॉर्टेड, है ना, L इज इक्वल टू mg, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। बट अगर टर्न देना है तो क्या करना पड़ेगा, एरोप्लेन v स्पीड से जा रहा है, लिफ्टिंग फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, mg इज एक्टिंग लाइक दिस, L इज इक्वल टू mg। अगर उसको टर्न लेना है, मान लो ऐसे टर्न लेना है, इट मींस इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर टर्न। तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल टर्न इट्स स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी है ऑफ एरोप्लेन, उसको ऐसे टर्न करेगा। सो व्हाट विल हैपन, दिस लिफ्टिंग फोर्स, इस सरफेस पे जो भी अपने जो एयर वगैरह है उसकी वजह से जो लिफ्टिंग फोर्स लगता है वो क्या होगा, अब पहले वो ऐसे लग रहा था, दिस लिफ्टिंग फोर्स विल एक्ट एट एन एंगल। नाउ पहले जो ऐसे फोर्स लग रहा था इट विल एक्ट एन एंगल, है ना। तो अब क्या होगा, इसका जो ये कंपोनेंट है दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस कंपोनेंट विल बैलेंस mg। तो मान लो कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिस इज द एरोप्लेन, तो यहाँ पे नीचे इस पे लग रहा है mg, एंड नाउ इस पे जो लिफ्टिंग फोर्स है वो किसी डायरेक्शन पे लगेगा। तो मैंने इसको ऐसे बनाया कि एक यहाँ पे नीचे इस पे लगा mg, नीचे mg ऐसे है, ऐसे बेंड है, नीचे mg एंड इस डायरेक्शन में लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। तो लिफ्टिंग फोर्स पहले कैसा था, ऐसा था। नाउ दैट लिफ्टिंग फोर्स हैज बेंड एट एंगल थीटा। तो क्या होगा, पहले लिफ्टिंग फोर्स वाज लाइक दिस, नाउ इट हैज बेंड एट एन एंगल थीटा, दिस इज L। सो दिस विल L sin theta will be equal to, it will provide the necessary centripetal force, it has to take turn like this, mv square by r, and L cos theta is equal to mg, again we got
tan theta is equal to v square by rg. So if it is moving with speed v and it has to take turn around a circle of radius r, then at what angle it should take a turn? यहाँ पे पहले क्या था, एरोप्लेन जा रहा था ऐसे, कितने पे बेंड हो गया, एंगल थीटा. ये पहले ऐसे जा रहा था, कितने पे बेंड हो गया, एंगल थीटा पे. So what is that angle? Theta is equal to tan inverse v square by rg. Tan theta is equal to v square by rg. ठीक है, तो ये हमने देख लिया थर्ड केस ऑफ tan theta is equal to v square by rg. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिख लो, a cyclist has to bend while taking a circular turn of radius r. A cyclist has to bend while taking a circular turn of radius r by an angle theta. If its speed is v, then find theta. ये भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं तो जब टर्न आता है तो हम क्या करते हैं, अपने साइकिल को बेंड करते हैं. ठीक है, तो वो एंगल कितना होगा, इफ यू आर मूविंग विथ स्पीड v, तो अगेन साइकिल पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, बट व्हाइल यू टेक द टर्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को फिर से यहाँ पे फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों लगेंगे व्हाइल टेकिंग द टर्न, क्योंकि बैंकिंग नहीं है रोड में, तो व्हाइल टेकिंग द टर्न फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों लगेंगे. तो यहाँ पे जब हम बेंड कर लेंगे एट एन एंगल थीटा, तो क्या होगा, वहां पे जो रिएक्शन आएगा, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन आएगा, इट विल बी एट एन एंगल थीटा. तो अब ये थीटा डिपेंड करेगा कि व्हाट इज योर स्पीड एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न. तो अगर यहाँ से रिएक्शन आया तो दिस रिएक्शन विल बी r cos थीटा, आई एम सॉरी, दिस इज द एंगल थीटा विच वी आर टेकिंग. पहले कैसे जा रहे थे, हम ऐसे जा रहे थे एंड देन वी टूक अ टर्न, पहले ऐसे जा रहे थे देन वी टूक अ टर्न लाइक दिस, तो है ना. तो यहाँ पे क्या है, पहले नॉर्मल इस साइड था, अब जब आप टर्न लोगे तो फ्रिक्शन भी होगा, नॉर्मल भी होगा, तो जो नेट रिएक्शन है वो किसी एंगल थीटा पे आ रहा है, देन ये क्या हो जाएगा, r sin theta and this will be r cos theta. So again same thing, we'll use r sin theta is equal to mv square by r and r cos theta is equal to mg. Again we have got tan theta is equal to v square divided by rg. v square divided by rg is the value of tan theta, या फिर theta is equal to tan inverse v square by rg. Clear? Next is pendulum in a car. Pendulum in a car taking circular turn. Pendulum in a car taking circular turn. तो अब यहाँ पे क्या है, जब आप सर्कुलर टर्न में होते हो, you have experienced this many times, कि जब आप सर्कुलर टर्न में होते हो, you bend, अगर कार ऐसे जा रही है तो आप इधर बेंड हो जाते हो, अगर कार ऐसे जा रही है तो आप इधर बेंड हो जाते हो, है ना. सो जो भी टर्न है, टर्न इस तरीके से है तो सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर टर्न इज लाइक दिस, तो आप इधर बेंड हो जाते हो. If you will hold a pendulum in car taking circular turn, you'll observe कि क्या होता है, एक एंगल पे away from the center, एक एंगल पे ये बेंड हो जाता है. So what is that angle? तो मान लो ये कार है which is taking a turn, ठीक है, of radius r with speed v, mass of the pendulum is m. तो ये क्या होगा, इधर सेंटर है अगर, so it will bend towards this direction. तो हमें यही थीटा फाइंड आउट करना है. पेंडुलम है जो कि थीटा पे बेंड हो गया, सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. तो ये सिमिलर हो गया कोनिकल पेंडुलम की तरह. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन वी आर टेकिंग टर्न ऑफ रेडियस r, तो बेसिकली एवरी पार्टिकल, एवरीथिंग व्हिच इज इनसाइड दिस कार इज टेकिंग अ टर्न टू इन द सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड v. सबके लिए सेम चीज अप्लाई होगी, फॉर दिस कार, फॉर दिस पेंडुलम, पीपल सिटिंग इनसाइड द कार, सबके लिए सेम चीज अप्लाई होगी. इट मींस this bob is also moving with speed v around a circle of radius r. तो इस पे क्या होगा, इस पे नीचे लग रहा है mg, there is a force, tension and this is theta, so this is also theta. and दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए
in this direction, because what it is doing, it is moving with a constant speed and taking a turn around a circle of radius r. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो सिमिलर टू कोनिकल पेंडुलम ये भी केस वैसे ही हो गया, T mg and its resultant first vector plus second vector resultant vector mv square by r, this is theta. So at what angle, if it is moving with speed v and around the circle of radius r, then what is the angle at which it will get tilted? What is the angle at which it will get tilted? तो क्या आ जाएगा यहाँ से, tan theta is equal to mv square by r divided by mg, v square divided by rg, v square divided by rg. What is the angle at which it will get tilted? Theta is equal to tan inverse v square by rg. क्लियर है? तो ये कुछ केसेस है जहां पे हमारे पास हर केस में क्या आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg. ठीक है, सारे केसेस में. तो बेसिकली व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स, देयर इज ऑलरेडी अ फोर्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जैसे फ्रिक्शन अगर है तो हमें सर्कुलर टर्न लेने में दिक्कत नहीं होगी इफ वी आर इन द रेंज ऑफ सेफ, या फिर वी आर इन द लिमिट ऑफ द सेफ स्पीड. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ देयर इज अ लेस फ्रिक्शन, जहां पे कम फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे फॉर सेफर केस हम लोग क्या करते हैं, जो रोड्स है उसमें हम बैंकिंग रखते हैं, कुछ टिल्टेड रखते हैं, सो दैट द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सेफ टर्न इन द सर्कुलर टर्न्स. क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो कि हम लोग इसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा. यहाँ पे हर केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे. तो अभी तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. जो भी इसमें पढ़ाया है प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से नोट्स बना लें, ये सारे केसेस नोट डाउन कर लें, एंड देन विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. अच्छे से पढ़ते रहें, स्टडी वेल, वर्क हार्ड. थैंक यू.